پر نماز ہی کو لے لیجئے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے, اللہ کے سارے رسول بیزار ہے, اللہ کے ملائکہ بیزار ہے, اور فرماتے میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہو. بتائیں مجھے اس شخص کو یہ حق کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے, اس کو یہ حق کیا ہے جس سے حضور بیزاری کا اعلان کریں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, گناہ کر کے جنت کا خواب دیکھنا اور جرائم کر کے اللہ کی غیرت پر نگاہ نہ کرنا اور اس سے آنکھیں موند کر کے انسان گناہ پر دلیر ہو, اس کا انجام کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو, اگر اچھے عمل نہیں کرو گے تو بربادی مقدر بن جائے گی, تباہ کر دیے جاؤ گے, برباد کر دیے جاؤ گے. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عذاب مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے ہم کچھ بھی کریں امت محمدیہ ہے, ہم پر تو عذاب آنے والا ہی نہیں. یہ خیال آپ کا اچھا نہیں. یقیناً یہ بات ہے کہ امت محمدیہ پر اجتماعی طور پر عذاب نہیں آئے گا, یعنی یہ پوری قوم کبھی ایک ساتھ ہلاک نہیں ہوگی, لیکن انفرادی عذاب انسان پہ آ سکتا ہے. انفرادی عذاب کا سر انسان پہ آ سکتا ہے اور آ رہا ہے. کوئی محسوس تو کرے. مثال کے طور پر دلوں کا بے چین ہو جانا, دلوں کا بے قرار ہو جانا, یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. عبادت کی توفیق نہ ہونا یہ اللہ کے عذابوں میں سے عذاب ہے. حیرت کی بات یہ ہے شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, شاعری سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, گناہ کے اشعار سن کر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. قرآن کی تلاوت سن کر آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, احساس کرو, غور کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. اس لیے کہ اس دنیا میں ہم اس لیے آئے کہ اس دنیا کی تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں. افسوس جس قوم کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہو, جو قوم آزمائش کے طور پہ دنیا میں آئی ہو, وہ قوم گناہوں میں ڈوب گئی, وہ قوم برائیوں میں ڈوب گئی, وہ قوم آوارگی میں ڈوب گئی. ذرا سوچو تو صحیح, جو آزمائش گاہ میں ہو, جو امتحان گاہ میں ہو, جو ایگزام ہال میں ہو, ارے شریر سے شریر بچہ بھی اگر ایگزام ہال میں بٹھایا جائے تو وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور قرآن کہہ رہے ہم نے تم کو امتحان ہال میں بھیجا, ہم نے تمہیں امتحان گاہ میں بھیجا. یہ آزمائش کی جگہ ہے, امتحان کی جگہ ہے. امتحان کی جگہ کوئی شاعری نہیں ہوتی, کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی, کوئی گانے باجے نہیں ہوتے, کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتا. حال تو یہ ہوتا ہے کہ دوست بھی دوست سے جی چرا کے سوچتا ہے ارے وقت بچاؤ کیونکہ اپنا کام پورا کرنا ہے. اگر ہم نے ٹائم نہیں بچایا تو ناکام ہو جائیں گے. تو امتحان حال میں بیٹھنا شریر سے شریر بچے کو بھی سنجیدہ بنا دیتا ہے. ہماری غیر سنجیدگی کی انتہا ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, تمہارا امتحان لیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور وہ کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں. دل بہلانے کے لطیفے سنے جا رہے ہیں, کامیڈی کرنے والوں کے شو دیکھے جا رہے ہیں, مسجد میں آنے کی توفیق نہیں اور اپنی راتوں کو جرائم میں گزارے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے آج مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے, نکڑ پر. مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے, ہوٹلوں میں. مسلمانوں کی راتیں کہاں گزر رہی ہے, گناہوں کے اڈوں پہ, شراب کے اڈوں پہ, موسیقی کے اڈے پہ, گناہ کے اڈے پہ. سوچو ایک وقت تھا ہماری راتیں کہاں گزرتی تھی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ کہ اللہ کریم نہیں. میں نے کہا ان کی زندگی دیکھ جن کو میرے رسول نے اپنی زبان سے جنت کی ضمانتیں دی تھی, ان کی راتیں کیسے گزرتی تھی. سیدنا فاروق اعظم اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے روتے تھے اور عرض کرتے تھے مولا عمر پر رحم فرما. مولا کائنات سید السادات باب مدینۃ العلم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم, جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار,
जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जो खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, उनकी रातों के बारे में आता है। जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते और ऐसे गिरियावजारी करते, ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता था। ऐसे मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से तड़पते थे और रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई वो इस तरीके से आंसू बहाएं, वो इस तरीके से रोएं। औरों की बात तो जाने दीजिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं और गलियों में निकल करके देखते हैं कि जिनकी मैंने खुद तरबियत की, मैंने जिनको खुद तैयार किया, मैंने जिनको अल्लाह की मारिफत अता की, जरा उनकी रातें कैसे हैं। गौर करना, हुजूर उम्मत की रातों को चेक करने के लिए निकल रहे हैं, हुजूर उम्मत की रातों को देखने के लिए निकल रहे हैं कि मदीने वालों की रातें कैसी है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज के माहौल की तरह वहां ऐसे रात में कोई चांदनी माहौल नहीं होता था। ऐसे वहां रात के वक्त में अल्लाह अकबर भीड़ का माहौल नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जैसे परिंदे शाम का इंतजार जंगल में करते हैं कि सूरज गुरूब होगा और हम अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे, वैसे वो अल्लाह वाले शाम का इंतजार इसलिए करते थे कि दिन की मसरूफियत से निजात मिलेगी और हम मुसल्ले पर आंसुओं की सौगात पेश करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी रातों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। उनको रातों से प्यार इसलिए था, उनको रातों का इंतजार इसलिए था कि अल्लाह की इबादत करेंगे, आंसुओं की सौगात पेश करेंगे, रब की बारगाह में मगफिरत तलब करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मत के रातों को चेक करने के लिए, अहवाल देखने के लिए घर से निकले। मेरा अकीदा ये है, इशारा मिल रहा है हुजूर उम्मत की रातों को चेक करते हैं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वालों, अगर हुजूर हमारी रातें देख रहे हैं तो हुजूर का दिल खुश होता होगा या दुखता होगा? हम रातों को क्या करते हैं? वो मुसल्लों के लिए रातों का इंतजार करते थे और हम गुनाहों के लिए रातों का इंतजार करते। उनको रातें कम पड़ती थी अल्लाह की इबादत के लिए और हमें रातें कम पड़ती है गुनाह के लिए। कितना बड़ा अलमिया है। जब मेरी कौम के नौजवान रातों को मुसल्ले पर रोकर गुजारते थे तब ये उम्मत गुलाम नहीं थी बल्कि आका थी। तब ये उम्मत भिखारी नहीं थी बल्कि दाता थी। जब मेरी कौम के जवान अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करते थे तो कोई आपको मुल्क से निकालने की बात नहीं करता था, लोग आपको अपने ममालिक में ले जाकर बसाने की बात करते थे। जब तक के पाक दामनी हमारी पहचान थी उस वक्त तक लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते थे, जलील नहीं करते थे। आज अपनी रातों का अंदाजा करो, हमारी रातें नुक्कड़ों पर, होटलों पर, और अब तो अलियाज़ु बिल्लाह फैशन के नाम पर ऐसे मामलात चले हैं कि रात रात भर नौजवान जो समझते कि ये गुनाह है ही नहीं, कोई अपनी रातों को क्लब में गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को ढाबे पे गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को होटलों पे गुजार रहा है। मैं ये नहीं कहता होटल में खाने ना जाओ, मैं ये नहीं कहता ढाबे पे खाने ना जाओ, लेकिन ये कौन सी दानिशमंदी है कि पूरी रात आप किसी होटल में गुजार दें, पूरी रात आप किसी ढाबे पे गुजार दें, हंसी मजाक करते हुए, हुक्का पीते हुए। और वो भी आजकल के नौजवान, पता नहीं क्या लत लगी है हुक्के की, न इसको गुनाह समझा जाता है। आपसे पूछता हूं, क्या इस एंगल से आप हुक्के को नहीं देखते कि जिन जिन फ्लेवर के तंबाकू और जो चीजें आप महंगी महंगी हजारों रुपए की इस्तेमाल करके धुआं उड़ा देते हो, क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? जिस कौम की बच्चियां लॉजों में गुर्बत की वजह से बेची जा रही हो, उस कौम के जवान अगर हजारों रुपए हुक्के की नजर कर दे तो क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा?
जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, क्या उस कौम से सवाल नहीं होगा कि उन्होंने हक्के के नाम पे हजारों रुपए खर्च कर दिए थे? किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। मिटने वाली कौमों का तरीका वही होता है जो हम कर रहे हैं। इकबाल ने एक सदी पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हुक्के को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन इस एतबार से कि अपने हजारों रुपए आप आग में जला रहे हो। और याद रखना, ये हुक्का ही है जो आपको सिगरेट का आदी बनाएगा, क्योंकि आप हुक्का लेकर के हर जगह तो जा नहीं सकते ना, तो बाद में सिगरेट पीने के आदी बन रहे जवान। और फिर सिगरेट जो कर रही है, फेफड़ों को खराब कर रही है, दिल को खराब कर रही है, दिमाग को माऊफ कर रही है। हो क्या गया है? और पूरी पूरी रात ढाबे पर गुजर रही है। जो रात पूरी ढाबे पे गुजार के सुबह घर पहुंचेगा, वो ड्यूटी पे कब जाएगा? वो तिजारत के लिए कब जाएगा? वो कमाई के लिए कब जाएगा? होटल में खाना खाने की जरूरत थी, खाना खाए निकल गए। जरूरत पूरी हो गई तो निकल जाओ, क्यों गपशप करते हो? अरे मस्जिद में जब जरूरत पूरी हो जाए तो कुरान कहता है फैज़ा कुदियतिस सलाह फंतशिरू, नमाज पढ़ लिए तो बाहर निकलो। अगर ये सेग़े अम्र नहीं है, हुक्म नहीं है, लेकिन इबादत के लिए तो है ना कि निकलो और क्या करो? अल्लाह का फज़ल तलाश करो, यानी अपने कारोबार में लग जाओ। कहीं ऐसा नहीं मस्जिद में जुमा के दिन कहा जा रहा है कि निकलो मस्जिद से और अल्लाह का फज़ल तलाश करो, जब वहां जरूरत पूरी होने के बाद मस्जिद से निकलने को जायज करार दे दिया गया। हालांकि यहूदियों के यहाँ पूरा शनिचर का दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, ये ईसाइयों के यहाँ पूरा इतवार के दिन कारोबार बंद करने का हुक्म है, और हमारे यहाँ जुमतुल मुबारक ईद का दिन सबसे ज्यादा मुबारक दिन है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि जुमा के दिन कारोबार बंद करो। हमें किसी दिन कारोबार बंद करने का हुक्म नहीं है, बल्कि फरमाया अल्लाहु अकबर, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। अज़ान से पहले कारोबार कर सकते हो, मगर अज़ान सुनो तो कारोबार बंद करके अल्लाह के जिक्र के लिए दौड़ पड़ो, अल्लाह की इबादत के लिए दौड़ पड़ो। तो चूंकि बंद करने का हुक्म दिया था कि अज़ान सुनो तो कारोबार बंद कर दो, तो किसी को यह गलत फहमी ना हो जाए अब अज़ान के बाद कारोबार कर नहीं सकते, तो इबादत के लिए कह दिया गया फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और दौड़ो वब्तगू, फैल जाओ जमीन पे, निकल जाओ जमीन पे अल्लाह का फज़ल तलाश करने के लिए। क्यों? इसलिए कि गुर्बत इंसान को कभी कभी कुफ्र तक पहुंचाती है। आजकल के नौजवान लड़के रातों को नुक्कड़ों पे, होटलों पे, ढाबे पे, गुनाहों के अड्डों पे गुजारते हैं और दिन भर सोते पड़े रहते हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बहन दूसरों के घर में बर्तन धुलने जा रही है, बहन दूसरों के घर में कपड़े धुलने जा रही है। मुझे बताओ, कुरूने ऊला के अंदर अगर गुर्बत ने कभी दस्तक दरवाजे पर दी है, तो औरतों ने जो काम किया है घर में बैठ करके किया है। हमारे सियासतदान औरंगजेब आलमगीर जैसे थे जो 11 महीने तक अखंड भारत पर हुकूमत करता था, और रमजान शरीफ का चांद नजर आता था तो अखंड भारत का बादशाह दिल्ली की मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता था। ये हमारे सुनहरी दिन थे, ये हमारी तारीख थी। मुसलमानों को हो क्या गया है? रातों से रातें ज़ाय कर रहे हो, दिन ज़ाय कर रहे हो, वक्त ज़ाय कर। लोग कहते हैं मौलाना पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, अगर 1 घंटा आप किसी किताब का मुताले के लिए निकाले, 1 घंटा से, 1 घंटा कह रहा हूं इसलिए 1 घंटा, 1 घंटा किसी किताब के मुताले के लिए निकाले, 10 सफ़ात रोजाना पढ़े, 10 सफ़ात, एक साल में कितना पढ़ लोगे पता है? 7,500 सफ़ात पढ़ सकते हो एक साल में। रोजाना 1 घंटा एक किताब पढ़े हो, 10 सफ़ात, साल गुजरेगा तो कितनी किताब, कितने सफ़ात का इल्म आपके सीने में हो जाएगा? 7,500 सफ़ात। अगर 1 घंटा सही इस्तेमाल किया तो 7,500 सफ़ात के उलूम के आप आलिम बन गए।
اگر اور وقت کا صحیح استعمال کرو گے تو کیا نہ ملے گا.